मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा होवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आगे में जगह काफी है, पीछे जो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस लेक्चर मीटिंग में, जिसका एजेंडा है SEZ मॉल द चेंजिंग फेस ऑफ इकोनॉमी, जिसे संबोधित करने जा रहे हैं रिनाउंड और एमिनेंट स्पीकर, जो कि स्वदेशी जागरण मंच से लेके आजादी बचाओ आंदोलन तक अपने एक अनोखे अंदाज में बोलते आए हैं। राजीव जी दीक्षित यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं मंच बुलाना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर PR रिजपूत और ट्रेजरर मिलिंद पटेल को कि वो अपना आसन ग्रहण करें। आज ऐसे प्रखर वक्ता हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं, उन्हें मैं मंच पे बुलाता हूँ और हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि उनके सम्मान मंच पे लेके आए। First of all, I request Chairman of Nagpur branch, West branch of India, CS Sudhir Khurana, to deliver his welcome address. Good evening, friends. Treasurer Milan, Managing Committee Member Rizbod Singh, Immediate Past Chairman Anil Madikar ji, Past Chairman Rajesh Roya ji, Seniors in the professions, and my dear colleagues. Good evening to all of you. I welcome you all in this lecture meet on SEZ and shopping malls, the changing face of economy. Friends, we all are witnessing the rapid changes in the economy and changing technology at a jet speed. Book by the father was to benefit his son, but nowadays every day we receive a call from a mobile company about the new offers, new product, new company. The changing phase and pace of the economy is bringing something new every time, every day. And the latest is the upcoming flow of SEZs and shopping malls. And no doubt that this is going to change the face of India in the world. But friends, every coin, except the only one specially made for Viru in the Sholay, has two sides. So there also, this
changing growth, changing economy has also two effects. One is of course the shining face of India, and what could be the other in the long term on an economy as well as on a common people. The impact of the same in the longer run over an economy and on common man needs to understand, and probably behind the shining face of India there could be many businessmen, now businessmen, maybe working as a salesman in a big shopping malls after compelling to shut down their shops. So friends, to understand the impact of growth, modernization and corporatization, we are here in this lecture meet to discuss the impact of SEZs and shopping malls in coming years. And we could not see a better person than Mr. Rajiv Dixit to tell about it. The moment we came to know that he will be in town on 23rd January, we immediately approached to him to have an interaction with our members, so-called intellectuals, and to have interaction to understand what could be the impact, both sides. And that's why we all are here. So, friends, Rajiv ji, like India, Indians and Swadeshi, we are very keen and agreed at the first instance to have interaction meet with him. Thank you, sir, and I welcome you all. Apart from this lecture meet, I would like to inform you about the forthcoming programs of the branch for the benefits of the members sitting here. On 25th, we are having one teleconferencing program on BPO and IPOs. BPO and KPO. Then on 26th January, we are having a sports festival throughout a day at YMCA Hall. On 27th, we have kept one half-day seminar on appeal, where Mr. Kapil Bahari and Jayant Ranade will be delivering their lectures under the chairmanship of Thakur sir. And thereafter, the much awaited mock tribunal is planned in the month of February. The library is now ready for use with all latest books, magazines, internet facilities, net facilities, and everything. At this juncture, I would like to inform Rajiv ji that Nagpur branch is one of the best branch for so many years. It has won All India Best Branch Award for last 2 years, consecutive 2 years, and 4 years in last 5 years. And it is adjudged as regional best branch for more than 13 years. Because of these regular programs on academic and fellowship, public meet, whether it is for the general public or for the members or for the students, we are regularly conducting the programs, and that is why we are nominated as the best branch. So I welcome you in this best branch of Nagpur, of India. And with this, I will hand over proceeding to Yogesh. वैसे तो राजीव जी के बारे में सभी कोई जानता है, काफ़ी अखबार में भी आते रहता है और काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा उन्हें। फिर भी उनका अल्प परिचय करने के लिए, सदन को अल्प परिचय कराने के लिए मैं उनके साथ जो एकदम निकटता से जुड़े हुए हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु अतुल देशमुख, इन्हें निमंत्रित करता हूँ कि वे राजीव जी का अल्प परिचय यहाँ सदन समक्ष रखें। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन का परिचय न देते हुए और व्यक्ति को सिर्फ व्यक्ति न समझते हुए व्यक्ति के विचार को अगर समझा जाए तो वो अपने आप ही परिचय हो जाता है। और ये जो विचार है ये आपके सामने अभी 5 मिनट में आने वाला है। मैं राजू जी का परिचय बहुत नहीं दूंगा, राजा कुछ भी नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूँगा हिंद स्वराज अभियान के वो प्रणीत है। 1989 से ये आंदोलन चालू हुआ था, उसका पहला नाम आज़ादी बचाओ आंदोलन था
अभी हिंद स्वराज अभियान हो गया 1 जनवरी 2005 से। और ये जो आंदोलन है हिंद स्वराज अभियान, ये जो अभियान है, इस अभियान के कुछ पहलू है वो 2 मिनट में आपको बताता हूँ और बाद में आपसे छुट्टी लेता हूँ। इस आंदोलन का जो मेन उद्देश्य है या ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसमें सबसे पहला ये ऑब्जेक्ट है कि भारत का अर्थशास्त्र जो है, मतलब इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जो वर्तमान इकोनॉमिक्स है या वर्तमान इकोनॉमी है या वर्तमान अर्थशास्त्र है, उसका भारतीयकरण करना। मतलब ऐसा है कि जो फिलहाल की इकोनॉमी चल रही है वो भारतीय की नहीं है, वो अंग्रेजियत की है। उस अंग्रेजियत को अंग्रेजियत इकोनॉमी जो है उसको अपने को भारतीयत्व में लाना, ये एक उसका पहला प्राइम उद्देश्य है। दूसरा उसमें उद्देश्य है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जो गुरुकुल पद्धति थी वो कितनी अच्छी थी और अभी की जो सिस्टम है वो क्या कर रही है, मतलब प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वर्तमान एजुकेशन, वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है उसको भारतीयत्व में लाना फिर से। जो हमारे गोल्डन डेज थे या बोलते ना सोने की चिड़िया भारत था, तो सही में था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेके और फिर उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करके लोगों के पास रिसर्च किया हुआ वर्क लाके उनके दिमाग में ये बैठाना कि भारत सही में सोने की चिड़िया है। ये नंबर 2 का ऑब्जेक्ट है। तीसरा उसमें है कृषि। शेतकरी लोगों ने कितनी आत्महत्या की आपको सब मालूम है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन कृषि पद्धति जो आज वापर रहे हैं वो कितनी गलत है और फिर 1835 के पहले वापरी जाने वाली कृषि पद्धति कितनी अच्छी थी। एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझ जाएगा कि भारत 1835 के पहले वर्ल्ड ट्रेड में 33.33% का शेयर होल्डर था। इससे आपको समझ सकता है कि वर्ल्ड में 33.33% का शेयर होल्डर अकेला भारत था, तो बाकी भारत छोड़ के बाकी सब देश 67% में थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत कितना उच्च था 1835 के पहले की बात बता रहा हूं। तो ये उसमें उद्देश्य है। उसमें चौथा है कि प्रेजेंट कायदे और कानून जो भी है तो सारे अंग्रेज लोगों ने हमारे पास यहाँ पे छोड़ के गए हैं 47 के बाद, उसका भारतीयकरण करना, उसके बारे में ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने का लोगों के सामने ला रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अंतिम जो है जिसको गांधी जी ने बांझ और वेश्या कहा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम जो है उसका भारतीयत्व में कन्वर्जन करना, ये 5वां उद्देश्य है। और ये 5 उद्देश्य लेके हिंद स्वराज अभियान यानी कि पहले का आजादी बचाओ आंदोलन 1989 से कार्यरत है। तो ये हिंद स्वराज अभियान का एक इंट्रोडक्शन हो गया। राजू भाई के बारे में बोल दिया कि आदमी नाम से नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं जाना चाहता, सिर्फ विचारों से जाना जाता है। बस मैं इतना ही इंट्रोडक्शन करके समाप्त करता हूँ। उनके विचारधारा से करवाया सदन को, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी दीक्षित हमारे नागपुर शाखा में पहली बार पधारे हैं, हम उनका स्वागत फूलों से करना चाहेंगे। मैं नागपुर शाखा के कोषाध्यक्ष मिलिंद पटेल से विनंती करता हूँ कि वे उन्हें पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। थैंक यू मिलिंद। अब मैं ज्यादा समय में लेते हुए राजीव जी दीक्षित से विनंती करता हूँ कि आज इस टॉपिक पे अपने विचार रखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मित्रों, आपके इस चैप्टर में मैं पहली बार आया हूँ। आपके मुंबई चैप्टर में मैं कई बार जा चुका हूँ, वहाँ कई मेरे व्याख्यान भी हुए हैं। विशेष रूप से WTO के प्रश्न पर बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए। दिल्ली ब्रांच में भी हुए हैं, मद्रास में भी हुए, बेंगलोर में हुए, नागपुर में पहली बार आया। आप सबका आभारी हूँ, आपने ये आयोजन किया। मेरे साथ मंच पर बैठे हुए श्री मिलिंद पटेल, जुल्फेश शाह, सुधीर सुराना और श्री रिश्वत जी का बहुत आभारी हूँ कि वो मेरे साथ हैं। मुझे आपसे कुछ भारत देश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में छोटी छोटी बातें करनी है। 45 मिनट में बात करूँगा, उसके बाद हम चाहें तो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप चाहें तो कुछ मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, कुछ आपके पास हो मुझे बताने लायक तो वो भी दे सकते हैं, मैं गंभीरता से सुनूंगा। अभी आप सब जान रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश की सरकार ये तैयारी कर रही है कि भारत में 300 के आसपास 300 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले जाएं और हजारों की संख्या में शॉपिंग मॉल्स बने गाँव वालों में।
दुनिया में कुल मिलाकर 400 के आसपास इकोनॉमिक जोन्स हैं, कुल मिलाकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसमें भारत में ही 300 खोलने की तैयारी। और शॉपिंग मॉल्स हमारे देश में हजारों की संख्या में खोले जाने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, कुछ खुल चुके हैं, कुछ आने वाले समय में बहुत तेजी से खुलने वाले हैं। इन शॉपिंग मॉल्स को खोलने के लिए भारत की कुछ कंपनियां हैं जो रात दिन काम कर रही हैं, जैसे रिलायंस है, और एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी भारत में आने जा रही है, वॉलमार्ट। उनका सुनील मित्तल जी से एग्रीमेंट हो गया भारतीय ग्रुप के साथ। वॉलमार्ट ने अनाउंस किया है कि 3000 शहरों में वो अपने शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे, उसमें से नागपुर भी एक है। ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं यूरोप और अमेरिका में होते हैं, और यूरोप और अमेरिका में शॉपिंग मॉल्स जो खोले जाते हैं उसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं। अगर हम वो समझ सकें तो भारत में शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वो बात हमें समझ में आएगी। यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी में, यूरोप से जब मैं बात करता हूँ और अमेरिका की बात करूंगा तो इंक्लूडिंग कनाडा, कनाडा उनके यहाँ नहीं होता है, सब कुछ उनके यहाँ नहीं होता है। उदाहरण के लिए अभी थोड़े दिन पहले जर्मन प्रोफेसर के साथ मेरी बात हुई एक कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उनसे पूछा आपके जर्मनी में गन्ना होता है, ऊस, शुगर केन होता है? तो उसने कहा नहीं होता। मैंने पूछा आपके देश में केला होता है? नहीं होता। आपके देश में चीकू होता है? नहीं होता। आपके देश में आम होता है? नहीं होता। आपके देश में सेब होता है? नहीं होता। अंगूर होता है? नहीं होता। थोड़ी देर में वो बौखला गया। मैं ये सब जानता था पहले से कि उनके देश में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सुनना चाहता था उसके मुंह से, तो एक एक करके मैं पूछता रहा। थोड़ी देर में बौखला गया तो कहने लगा देखिए अब आगे आप ज्यादा बात मत करिए, जो भी मीठी चीज है वो मेरे देश में नहीं होती, जो भी मीठी चीज है वो मेरे देश में नहीं होती। केला है, गन्ना है, संतरा है, चीकू है, ये सब मीठे फल है, मेरे देश में ये नहीं होते। फिर मैंने दूसरा एक प्रश्न उसके ऊपर छोड़ा, उसमें वो और ज्यादा बौखला गया। मैंने कहा अच्छा चलो मान लिया मीठी चीज आपके यहाँ नहीं होती, तो आपके देश में पालक होता है? पालक मीठा नहीं है, मेथी होती है। शुरू कर दिया तो फिर बौखला गया। फिर उसने कहा आप ज्यादा आगे मत पूछिए, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती। तो ये दो वाक्य जब उसने बोल दिए तो फिर मैंने कहा आपके देश में होता क्या है? तो उन्होंने कहा सिर्फ दो चीजें होती हैं, आलू होता है, पोटैटो, और प्याज होती है ओनियन। ये जो उत्तर है ये यूरोप के सभी देशों में आपको सुनने को मिलेगा। तो जर्मनी हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, कोई भी देश में चले जाइए, ईस्ट यूरोप का हो या वेस्ट यूरोप का, अब तो ईस्ट वेस्ट का झगड़ा भी खत्म हो गया है, यूरोप कुल मिलाकर एक हो गया है। तो ईस्ट और वेस्ट किसी भी यूरोप के हिस्से में आप चले जाइए, आपको यही उत्तर मिलेगा कि हरे पत्ते की कोई चीज नहीं होती, मीठी कोई चीज नहीं होती। अगर हम उनके फसल के रूप में देखना चाहें तो सिर्फ उनके पास 2 या 3 चीजें हैं। एक तो आलू हो जाता है सब जगह, दूसरी प्याज हो जाती है, और कुछ देशों में थोड़ा गेहूं हो जाता है, चौथी कोई चीज नहीं। अमेरिका थोड़ा यूरोप से बेहतर है इस मामले में कि अमेरिका में कुछ 8-10 चीजें हो जाती है। कुछ मीठी चीजें अमेरिका में हो जाती है, जैसे लीची हो जाती है, सेब हो जाता है। तो अमेरिका के कुछ इलाके में थोड़ा बहुत केला भी हो जाता है, बाकी कुछ चीजों में गेहूं हो जाता है, और कुछ जगह कपास हो जाती है। ऐसी कुछ चीजें अमेरिका, तो अमेरिका यूरोप से थोड़ा बेहतर है। लेकिन महत्व की बात है कि 14,000 से ज्यादा वस्तुएं इस देश में होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने लिस्ट किया है कि हमारे भारत देश में पेड़ों से क्या क्या मिलता है और फसलों से क्या क्या मिलता है। एक तीसरा सेक्शन है जंगलों का। तो कुल 14,785 वस्तुएं, 40,785 प्रोडक्ट्स, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, केला, अंगूर, आम। ये सबसे महत्व की बात है समझने वाली, भारत के सभी राज्यों में होती है। आप बिल्कुल धुर उत्तर में चले जाइए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, वहां से लेकर बिल्कुल दक्षिण में चले जाइए केरल तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर चले जाइए, ईस्ट में आसाम और उसके आगे तक, सभी राज्यों में लगभग सभी चीजें होती हैं जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि वहां जीवन को चलाने के लिए कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर परसेंटेज में हम बात करें तो 10-11 वस्तुओं का 14,785 वस्तुओं से परसेंटेज निकालें तो 0.00 कुछ परसेंट आ जाएगा। तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं होता, तो वो बेचारे क्या करते हैं, दूसरों से लाते, अफ्रीका से कुछ लाएंगे, लैटिन अमेरिका से कुछ लाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया से कुछ लेके जाएंगे, भारत जैसे देशों से कुछ लेके आएंगे। तो अनेक अनेक देशों से चीजें इकट्ठी करके उनको अपने जीवन को चलाने में मदद होती है। माने वो सभी देश अधिकतर चीजों में इंपोर्ट बेस्ड कंट्रीज हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें आयात करना पड़ता है, यूरोप हो या अमेरिका। तो जब वहां अपने उनके देश में कुछ होता नहीं है, ज्यादा चीजें उन्हें आयात करके लानी पड़ती हैं, तो उनके सामने बहुत समस्याएं हैं। उनमें से एक समस्या ये है कि जब उन्हें जरूरत हो तब सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। हो सकता है 2 महीने देर से मिले, 3 महीने देर से मिले, 5 महीने देर से मिले। आज उन्हें जरूरत है कि सब्जी खानी है, लेकिन आज नहीं मिले क्योंकि आएगी तो दूसरे देश से। हमारे देश में महात्मा गांधी जैसा जीनियस कोई व्यक्ति पिछले 500 साल में नहीं हुआ जो ये बोल कर गए कि जीवन में जितनी आवश्यक वस्तु है वो उतनी ही नजदीक से मिलनी चाहिए। ये गांधी जी का बहुत बहुत विद्वतापूर्ण स्टेटमेंट है और इस पर मैं विश्लेषण करूं तो घंटों लगते हैं। वो कहते थे कि जीवन में जो वस्तु जितनी आवश्यक है वो उतनी ही नजदीक से मिलनी चाहिए। जैसे हमको अपनी जिंदगी को चलाने में सबसे ज्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन, तो वो बिल्कुल नजदीक में रहनी चाहिए। नहीं मिले, अगर मान लो कुछ ऐसी कल्पना आप करो कि ऑक्सीजन मिले नहीं और उसका सिलेंडर लाना पड़े, तो कितने हिंदुस्तानी हैं या कितने भारतवासी हैं जो सिलेंडर लाकर जी सके। ऑक्सीजन हमें यहाँ चाहिए जहाँ नाक है, उपलब्ध है तो हम जिंदा है। अगर अमेरिका से ऑक्सीजन के सिलेंडर आना शुरू हो जाए इस देश में, कुछ ग्लोबलाइजेशन का ऐसा हिसाब किताब बैठ जाए कि ऑक्सीजन हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी अमेरिका से, तो सोचिए क्या होगा। तो हमें श्वास तुरंत चाहिए, नजदीक में है। पानी चाहिए, वो भी मेरे नजदीक में है। मुझे मेरे घर में पानी चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मुझे तुरंत पानी मिले। फिर खाने को चाहिए तो घर के नजदीक खेत में है तो वहां से मिल गया। मेडिसिन चाहिए, वो घर के नजदीक में। तो जो वस्तु जितनी ज्यादा बार आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत है इस्तेमाल करने की, वो उतने ही नजदीक होनी चाहिए। तो गांधी जी कहते थे कि इस मामले में हिंदुस्तान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश है, आदर्श है। यहाँ जो चीज की जहाँ जरूरत है आसानी से उपलब्ध है। आप किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, आपको जिंदगी चलाने के लिए आराम से बहुत कुछ मिल जाएगा। ये हो सकता है कि वहाँ मोबाइल फोन ना लगे, ये हो सकता है कि वहाँ कंप्यूटर काम ना करे, लेकिन जिंदगी आपकी चल जाए ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, चना मिल जाएगा, सब्जियां मिल जाएंगी, दालें मिल जाएंगी, गाय का दूध भी मिल जाएगा, पानी भी अच्छे से मिल जाएगा, सोने के लिए कपास का गद्दा भी मिल जाएगा क्योंकि कपास उनके यहाँ होती है। तो जीवन चलाने के लिए तो सब मिल जाएगा, लेकिन जीवन में जिसको ऐशो आराम हम कहें वो शायद ना मिले। यूरोप और अमेरिका में इसका ठीक उल्टा है कि वहां जीवन को आवश्यक जो चीजें हैं वो कहीं भी नहीं मिलती। आप कभी अमेरिका जाएं या यूरोप जाएं और वहां की किसी बड़ी सड़क पर खड़े हो जाएं और बस देखें क्या हो रहा है। सड़क पे खड़े हो जाइए, उनके जो नेशनल हाईवेज हैं उन पे खड़े हो जाइए तो आपको देखोगे ट्रक के ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, लंबे लंबे ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं। और संयोग से 100 ट्रकों को खुलवा के देख लीजिए आप इनमें अंदर क्या जा रहा है, तो उसमें 90 ट्रक्स ऐसे होंगे, या तो उसमें गेहूं जा रहा होगा, या गेहूं का आटा जा रहा होगा, या डबल रोटी और पाव रोटी जा रही होगी। या तो गेहूं जा रहा होगा, या गेहूं का आटा जा रहा होगा, या डबल रोटी और पाव रोटी जा रही होगी। कारण क्या है, अमेरिका में भी सभी राज्यों में गेहूं नहीं होता। अमेरिका में 50 राज्य हैं, सब जगह गेहूं नहीं होता। तो जहां गेहूं नहीं होता वहां गेहूं लाना पड़ता है, जहां होता है वहां से। तो ट्रक में भर भर के वो गेहूं लाते हैं। फिर वो गेहूं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है जहां उसका आटा बनता है। फिर उस आटे को ट्रक में भर भर के वहां पहुंचाना पड़ता है जहां पाव रोटी डबल रोटी बनती है। फिर पाव रोटी डबल रोटी को भर भर के वहां पहुंचाना पड़ता है जहां शॉपिंग मॉल्स होते हैं। और उन शॉपिंग मॉल्स में आके लोग उसको खरीद कर ले जाते हैं। ये उनकी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा हेडेक है। गेहूं कहीं से लाया,
आटा कहीं बनने गया, आटा बन के पाव रोटी कहीं बनी, पाव रोटी बनकर कहीं बिकने के लिए गई। अब उस शॉपिंग मॉल्स में पाव रोटी खरीदने के लिए हर एक को जाना पड़ेगा अपनी अपनी कारें लेकर, क्योंकि वहां किसी के भी घर के 50 मील दूर तक शॉपिंग मॉल्स मिलेगा, या 40 मील दूर मिलेगा, या 25 मील दूर मिलेगा, या 30 मील दूर मिलेगा। तो उनको अपनी गाड़ियों में पेट्रोल जला जला के पाव रोटी खरीदने के लिए जाना और फिर वापस आना पड़ेगा। और वहाँ की जिंदगी कुछ ऐसी है कि सवेरे 7 बजे काम पे जाना पड़ता है और रात 7 बजे तक सामान्य रूप से काम करना पड़ता है। 12 घंटे से कम कोई भी अमेरिकी और यूरोपियन काम नहीं करता। 7 बजे फैक्ट्री में पहुंचना 90% लोगों की मजबूरी है। और जहां फैक्ट्री है और उनका घर कम से कम उसमें 250 मील का दूरी होगा, 200 मील का दूरी होगा। तो घर से फैक्ट्री पहुंचने के लिए 2 घंटे का ड्राइव चाहिए, तो 5 बजे घर छोड़ना पड़ेगा। 5 बजे घर छोड़ने के लिए सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा। ज्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, इसलिए उनको 3 बजे ही उठना पड़ता है, क्योंकि टॉयलेट रूम में सबसे ज्यादा समय उन्हीं को लगता है। एवरेज अमेरिकन को टॉयलेट रूम में 1 घंटे लगता है। और उसको पूछो क्या करते हो टॉयलेट रूम में, तो कहता है न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि स्टूल पास नहीं होता, क्योंकि बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। तो 3 बजे बेचारे उठेंगे तो रात को हर हालत में उनको 9 बजे सो जाना पड़ेगा, 8 बजे सो जाना पड़ेगा। 7 बजे फैक्ट्री बंद होगी तो वहां से घर आने में फिर 2 घंटे लगेगा। 9 बजे घर आके किसी तरह रूखा सूखा मुंह में डाल के और सीधे सो जाना पड़ेगा, सुबह फिर 3 बजे। ये जिंदगी उनकी हर सप्ताह में 5 दिन चलती है। इनमें से कोई भी एक दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 5 दिन में से कभी वो बीमार भी पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाने की फुर्सत नहीं है। अगर गलती से चले गए तो अगले दिन उनको नौकरी गई। और आप सभी जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में जो काम करने का तरीका है उसमें खड़े होकर ही काम करना पड़ता है। आप कुर्सी पर जैसे बैठ के काम करते हैं ना राजा की तरह से, ये वहां किसी की कल्पना नहीं। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी जो है ना खड़े रह के ही काम करता है। अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, डॉक्टर्स भी खड़े रहते ही काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स के चैम्बर होते हैं जिसमें बड़ी आराम से गद्देदार कुर्सी होती है, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में ये कल्पना नहीं। एक छोटा सा स्टूल होता है जिस पर वो थोड़ी देर टिक सके, आराम से बैठ सके, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उनके यहाँ। तो स्टैंडिंग पोजीशन में काम करना है। काम करते समय आप अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते। गलती से भी बात कर लिया तो सुपरवाइजर आपको अगले दिन कह देगा भैया मत आओ, तुम्हारी जरूरत नहीं, दोनों की छुट्टी हो जाएगी। काम करते समय आपको सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आपको मालूम है कि आपके पड़ोस में जो काम कर रहा है उसके पास मेडिसिन है, जो पेन किलर है, आप उससे अगर मांग भी ली तो आपकी नौकरी गई। सुपरवाइजर वहां जो है ना एक कमरे में बैठा रहता है, कंप्यूटर पे देखता रहता है कि कौन किससे बात कर रहा है। अगर आपने आपस में बात कर लिया तो तकलीफ हो गई। और जो कुछ हिंदुस्तानी आत्मीयता आपने देखा ही तो बहुत उल्टा पड़ने वाला है। हम हिंदुस्तानी जो है ना किसी भी अपरिचित को मुस्कुरा देते हैं और उससे अरे भाई क्या हालचाल है, मालूम नहीं वो क्या है, हम क्या है, पूछ तो लेते हैं भाई तुम्हारा हालचाल क्या है। गलती से भी आपने किसी फैक्ट्री में किसी का हालचाल काम करते समय पूछ लिया तो लेने के देने पड़ जाए। और जहाँ लंच का ब्रेक होता है तो लोग पागलों की तरह से फैक्ट्री से निकलते हैं और अपने अपने जेब में से निकाला हुआ बड़ा पाव जल्दी जल्दी ऐसे मुंह में घोंसते हैं, क्योंकि 5-7 मिनट में सब करना है। फिर उनको सिगरेट भी पीनी है, उसके बाद में फिर पानी भी पीना है, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा लंच ब्रेक नहीं है कहीं भी। किसी तरह खा पी के अंदर घुस जाते हैं। ये उनकी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जो हम हिंदुस्तानियों को कोई बताता नहीं है, जो यूरोप और अमेरिका जाता है। वो बखान ये करते हैं वहां तो सब स्वर्ग है, स्वर्ग से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कैसा है अमेरिका में कि अगर आपको धोबी चाहिए तो घर में नहीं आएगा, 20 मील दूर कार में लेके जाइए, कपड़े लेके आइए, प्रेस कराने हो या धुलवाने हो। हिंदुस्तान जैसा सुख कहीं नहीं है कि घर के दरवाजे पर चिल्ला चिल्ला के धोबी खड़ा, प्रेस करा लो जी, प्रेस करा लो। आप बोलोगे नहीं कराना तो भी अंदर घुस आएगा, चला 1 गिलास पानी तो पिला दो, भले प्रेस मत कराओ। थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा आ जाएगा, पालक ले लो जी, मेथी ले लो जी, प्याज ले लो जी। अमेरिका में कोई नहीं आता, यूरोप में कोई नहीं आता। आपको पालक और मेथी खरीदनी है तो सप्ताह भर इंतजार करिए, जब आपको ऑफ डे मिलेगा सैटरडे और संडे तो 50 मिनट ड्राइव करके जाइए और उसके बाद आप सब्जी खरीद के लाइए। सब्जी के साथ 1 हफ्ते का दूध एक साथ खरीद लाइए, क्योंकि दूध रोज वहां नहीं मिलता। हम जैसे ताजा दूध यहाँ पी लेते हैं ना, और दूध वाला घर आके घंटी बजा के सवेरे 5 बजे ठंड में दूध दे जाता है, ऐसी कल्पना अमेरिका में कोई राजा भी नहीं कर सकता।
अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये सुख उपलब्ध नहीं। तो यहाँ, और अब तो मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ, छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ, बाल बनाने वाला नाई घर में आके बना के जाता है। अमेरिका में बाल बनवाने जाना हो तो अपॉइंटमेंट फिक्स करिए पहले उसके साथ, वो 7 दिन बाद का अपॉइंटमेंट देगा, उस टाइम पे आप जाइए बाल बनवाने, तो बाल बनेंगे, आगे पीछे गए तो भगा देगा। वहां की जिंदगी की कुछ सीमाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है और हम अच्छे हैं, हम जानना चाहते हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। उनकी ये सीमाएं हैं। जिंदगी बहुत कठोर है वहां पर। सवेरे 3 बजे से शुरू होकर शाम को 9 बजे खत्म हो जाए और 5 दिन बैल की तरह से खटना पड़े आपको अपनी जिंदगी में, कहीं भी फ्री स्पेस ना हो। मैंने वहां की महिलाओं को देखा, इतनी बुरी हालत में होती है। अगर कोई महिला है वो काम करती है, सामान्य रूप से सब महिलाओं को काम करना पड़ता है, क्योंकि बिना काम के जिंदा रह नहीं सकते आप, क्योंकि जीवन वहां इतना सस्ता नहीं है जितना भारत में है। यहाँ तो बहुत सारी माताएं काम करने ना भी जाए तो भी उनका घर आराम से चल सकता है। वहां तो कोई भी माँ सोच नहीं सकती बिना काम के। तो माताएं जब काम पर जाती हैं तो इतना दुख होता है देख के। छोटा बच्चा है उनके पास, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसको क्रैश में छोड़ना है, और क्रैश जो है घर से 100 मील दूर है। तो क्रैश में पहले बच्चे को छोड़ के आइए, फिर 100 मील ड्राइव करके फैक्ट्री में जाइए, और जब कोई माँ अकेली अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जाती है तो बच्चे को सीट से बांधना पड़ता है। सीट होती है ना सामने की, उस पर बांधना पड़ता है। अभी अमेरिका की सरकार ने कानून बदल दिया कि सामने की सीट में बच्चा नहीं बांध सकते, तो पीछे बांधना पड़ता है। और वो बेचारा चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, क्योंकि 3 बजे उठा दिया उसकी माँ ने मार पीट के। क्योंकि माँ जाएगी फैक्ट्री में तो बच्चा घर में अकेला कैसा रहेगा, नौकर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, क्योंकि जितनी उनकी पगार है वो नौकर कोई देने में चली जाएगी। तो बच्चे को मार पीट के किसी तरह उठाते हैं 3 बजे सवेरे सवेरे, वो चिल्लाता रहता है, उसको क्रैश में छोड़ के आते हैं, फिर ड्राइव करके माँ जाती है फैक्ट्री में, फिर शाम को 7 बजे आती है, फिर बच्चे को क्रैश से लेती है, फिर 9 बजे घर पहुंचती है। उतने में तो उसकी जिंदगी निचुड़ चुकी होती है। यूरोप में ऐसे हजारों नहीं लाखों पति पत्नी हैं जो पति पत्नी होने का सुख नहीं भोग पाते महीनों महीनों तक। इतने गरीब लोग, इतने बेचारे लोग, हो सकता है उनके पास लाखों डॉलर हो, लेकिन डॉलर से सुख नहीं मिलता, सुविधाएं मिल सकती हैं। तो उनकी जिंदगी कुछ खास सीमाओं में बंधी हुई है, और उन सभी देशों का एक ही जैसा है कि सब जगह सब कुछ होता नहीं है। तो जहां जो कुछ होता है वहां से इकट्ठा करो, और एक ही जगह कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं ये इस मजबूरी की उपज है। अमेरिकन इकोनॉमी में, यूरोपियन इकोनॉमी में, चूंकि हर चीज हर जगह होती नहीं है, जीवन चलाने के लिए चाहिए तो सब कुछ, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। तो उनको हर जगह जहां से भी कुछ मिले वो इकट्ठा करो, सेंट्रलाइज उसको रखो, ताकि लोग आकर उसे खरीद कर ले जा सकें और अपनी जिंदगी चला सकें। इसलिए उन्होंने शॉपिंग मॉल्स बनाए, और उनके शॉपिंग मॉल्स आप जानते हैं कि भारत की दुकानों जैसे नहीं है। हमारे यहाँ की दुकान और उनके शॉपिंग मॉल्स में जमीन आसमान का अंतर है। उनके यहाँ के शॉपिंग मॉल में मोटर कार से लेकर सुई और धागे तक एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि ना मिले तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। एक ही जगह मिलना उनके लिए आवश्यक है, नहीं मिलेगी तो जिंदगी नहीं चलेगी। तो उनके सारे शॉपिंग मॉल्स होंगे सेंट्रलाइज्ड, और सेंट्रलाइज शॉपिंग मॉल्स रखने हैं तो उनके लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है। तो उनके लिए बड़ी कंपनियां जरूरी हैं, और बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा पूंजी निवेश जरूरी है। तो उनके यहाँ एक शॉपिंग मॉल खोलना हो तो 2-5 लाख डॉलर से कम का किस हिसाब किताब नहीं हो सकता। 50 लाख डॉलर का हिसाब किताब है, हो सकता है 1 करोड़ डॉलर में वो खोले। तो इसलिए वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शॉपिंग मॉल चलाती है। छोटी कंपनी तो अमेरिका और यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मान लीजिए एक कंपनी है वॉलमार्ट, उनके अमेरिका में हजारों शॉपिंग मॉल्स हैं, क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज कंपनी है। वॉलमार्ट का 1 साल का टोटल सेल भारत सरकार के बजट से 2 गुना ज्यादा है। भारत सरकार का 1 साल का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, वॉलमार्ट का 1 साल का सेल 11 लाख करोड़ रुपए का है। वॉलमार्ट के टक्कर की एक दूसरी कंपनी है यूरोप की जिसका नाम है केयरफोर, CARREFOUR, केयरफोर। इनकी बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप में। वॉलमार्ट की बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप, अमेरिका और कनाडा में। तो उनके बहुत सारे सब कुछ काम सेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। ये बात जो है समझने की है। सेंट्रलाइजेशन में कोई काम सस्ते में नहीं हो सकता, उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए।
तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स और बहुत सेंट्रलाइज तरीके से वो चलाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। और वो मजबूरी है कि भगवान ने, प्रकृति ने उनको हर जगह कुछ भी नहीं दिया। कुछ जगह कुछ होता है, कुछ जगह कुछ होता है। हर जगह की चीजें एक जगह इकट्ठी करके ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है उनकी मजबूरी। अब भारत की बात करें, भारत में शॉपिंग मॉल्स क्यों चाहिए? इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सब कुछ सब जगह होता है। मैंने आपको कहा भारत में 35 राज्य हैं, हर राज्य में गेहूं होता है, चावल होता है, चना होता है, मटर होती है, दाल होती है। हर राज्य में केला होता है, हर राज्य में गन्ना होता है, संतरा होता है, हर राज्य में मूंगफली होती है। आपको जीवन में जो भी चीजें आवश्यक हैं, जो आप घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं, लगभग 108 मसाले हमारे जीवन में रोज काम आते हैं। हल्दी है, धनिया है, मेथी है, जीरा है, आदि आदि। इनमें से 50% हर जगह होते हैं। हल्दी तो अब लगभग हर समय हिंदुस्तान में कहीं भी हो जाती है। तो जब सब कुछ सब जगह होता है तो हमको सेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है? हम भारत में 7,32,000 गांव की बात करते हैं। 7,32,000 में किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, जीवन जिंदा रखने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो उस गांव में मिल जाएगा। तो भारत में चूंकि हर गांव में सब कुछ होता है, इसलिए यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है जहां सब कुछ होता है। सेंट्रलाइजेशन वहां करना पड़ता है जहां कुछ नहीं होता। तो यूरोप और अमेरिका में कुछ नहीं होता तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ सब जगह होता है तो हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को चलाते हैं। अब ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी भारत में चल रही है पिछले सैकड़ों साल से, हजारों साल से, समय समय पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा कोशिश की इसको तोड़ने की अंग्रेजों ने डिसेंट्रलाइज इंडियन इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 250 साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। 250 साल उन्होंने कोशिश की, फिर भी कामयाब नहीं हुए। अंग्रेजों से पहले थोड़ी यही कोशिश की पुर्तगालियों ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं। थोड़े दिन यही कोशिश की फ्रांसीसियों ने, वो भी कामयाब नहीं हुए। और ये अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से थोड़े दिन पहले ये कोशिश की इस्लाम को मानने वाले उन सब विदेशी शासकों ने जो भारत से बाहर के थे, भारत की भूमि पर लूट मार करने आए थे। वो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे तैमूर लंग हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे बाबर हो, ये सब जो विदेशी शासक आए, उन्होंने भी यही कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो डिसेंट्रलाइज कैरेक्टर है, इसको तोड़ मोड़ होकर एक सेंट्रलाइज बना देना। लेकिन वो 600 साल में भी कामयाब नहीं। उन्होंने ये कोशिश 10वीं शताब्दी से शुरू की थी, महमूद गजनवी के समय से, और 16वीं शताब्दी तक आते आते उनको भारत से हट ही जाना पड़ा। कामयाब वो नहीं हो पाए। 400 साल यूरोप वालों ने कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। अब वही कोशिश इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं। वही कोशिश मनमोहन सिंह कर रहे हैं। जिस कोशिश में यूरोपियन फेल हो गए, इस्लामिक रिपब्लिकन लोग फेल हो गए, उसको मनमोहन सिंह कर रहे हैं। मैं आपको ये स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, मनमोहन सिंह भी कामयाब नहीं होंगे, इसमें सफल नहीं होने वाले, लेकिन वो नुकसान बहुत करते हैं इस देश में। सफल तो नहीं होगा, नुकसान बहुत हो जाएगा। सफल क्यों नहीं होगा? आप पूछेंगे जी सफल क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि हिंदुस्तान की आबादी के 2 हिस्से हैं। 110 करोड़ की हमारी आबादी है। इसमें एक हिस्सा है जो इंडिया है और दूसरा है वो भारत है। ये जो इंडिया है वो हमारा आपका है, हम सब, जिसको हम मिडिल क्लास कहें, अपर मिडिल क्लास कहें, हायर क्लास कहें, इस देश में ये सब इंडिया वाला वर्ग है। लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 25-27 करोड़ के आसपास है। तो 25 से 27 करोड़ का एक वर्ग है जो इंडिया में रहता है। इनके बीच में आप शॉपिंग मॉल्स चलाएंगे तो थोड़े बहुत चल जाएंगे, शायद। वहां भी मुझे डाउट है कि वो चल पाएंगे, शायद चल जाएं। लेकिन बाकी का जो हिंदुस्तान है 70 करोड़ का, 77 करोड़ का, 78 करोड़ का, वहां तो सफल होने का कोई चांस नहीं। क्यों? हर आदमी जो वहां रह रहा है वो अपने ऊपर स्वावलंबी है, उसके पास सब कुछ है जो उसकी जरूरत का है। उसको गेहूं चाहिए, गेहूं पैदा कर लेता है। आटा बनाना है तो घर में वो पत्थर की चक्की है, उसको घुमा के आटा बना लेता है। उसको कोई मशीन भी नहीं चाहिए आटा बनाने की, बिजली आए ना आए उसके
ठेंगे में, वो तो अपनी चक्की चला के गेहूं का आटा बना लेता है, बाजरी का बनाना है तो भी चला लेता है, जवी का बनाना है तो चला लेता है, उसको चटनी बनानी है तो मैगी का इंतजार नहीं करता, वो अपना सिलबट्टा लिया, टमाटर पीस लिया, ताजा चटनी तैयार हो गई। उसको अगर कुछ खाना है तो तुरंत। हमारा आपका इलाका है, इसको थोड़े बहुत शॉपिंग मॉल्स चाहिए, क्योंकि हम और आप थोड़े परावलंबी जीव हैं। हमको जो कुछ चाहिए वो हम पैदा कर नहीं पाते। हमको रोज खाने को गेहूं चाहिए, हमारा गेहूं पैदा करने की ताकत हमें नहीं है। दाल चाहिए, नहीं है हमारी ताकत। सब्जियां चाहिए, नहीं है हमारी ताकत। कॉफी पीते हैं लेकिन कॉफी पैदा नहीं कर सकते। चाय पीते हैं लेकिन चाय पैदा करना हमको मालूम नहीं है। हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमारे पास वो नॉलेज बेस नहीं है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो हम पैदा कर सकें। हम परजीवी लोग हैं, पैरासाइट हैं। खासकर पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग तो सभी पैरासाइट हैं। वो निर्भर हैं ऐसे लोगों पर कि वो कुछ कृपा कर दें आपके ऊपर पैदा करके देने की, तो ठीक है। नहीं तो कल को वो ये कह दें कि हम बेचेंगे ही नहीं गेहूं हमारा, तो आप क्या कर लेंगे? वो ये कह दें कि हम तो चावल बेचेंगे नहीं, हम खाते हैं उतना ही पैदा करेंगे। हम दालें बेचेंगे ही नहीं, हम जितनी दालें चाहते हैं उतनी ही पैदा करेंगे। तो वो वर्ग आपको दे देता है तो आपकी जिंदगी चलती है। तो आप बड़े ठसक में रहते हैं कि जी आपके पास रुपया है। रुपया क्या होता है जी? डेड है। उसमें क्या दम है रुपये? रुपए से उसकी गनीमत है कि वो आपको कुछ दे दे रहा है, वरना वो रियल वैल्यू क्या है रुपए की? कुछ नहीं, वो तो मरी हुई चीज है, कागज का एक नोट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उस पर कुछ घोषणा कर रखी है कि मैं 100 रुपए देने का वचन देता हूं, अगर वो घोषणा कल वापस हो जाए तो वो तो कुछ दम नहीं रखता। गेहूं में दम है, चावल में दम है। गेहूं पैदा करने वाला जानता है कि मैं ये गेहूं से कुछ भी खरीद लूंगा। जिसके पास चावल है वो गेहूं ले लेगा और उसको चावल दे देगा। लेकिन आपके पास तो न गेहूं है न चावल है, खाली कागज का टुकड़ा है। कल को वो कहे कि मैं नहीं मानता, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट की किसी बात को नहीं मानता, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तब आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, कहेंगे भैया कुछ तो दे दो। तो कहेगा मुझे कुछ दे दो बदले में। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए उसके पास। हम मानते हैं ना कि पहले एक इकोनॉमी थी जो बार्टर सिस्टम से चलती थी, वो बहुत आइडियलिस्टिक होता है। बार्टर में पता है क्या होता है? सबके पास सब कुछ होता है। सबके पास सब कुछ होता है, क्योंकि वो अपनी चीज से कुछ भी एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन ये जो करेंसी वाली इकोनॉमी है, इसमें एक क्लास ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय कागज के टुकड़े के। और ये कागज का टुकड़ा तभी तक है जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी है। किसी दिन इस देश में कोलैप्स हो जाए पूरी इकोनॉमी और सरकार डूब जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में हम ये सब रोज देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, थोड़े दिन पहले इसका रिजर्व बैंक, इंडोनेशिया का भी रिजर्व बैंक है, उसका गवर्नर कहता था कि मैं ये गारंटी लेता हूं जैसे हमारे यहाँ। आज उनकी हर करेंसी का डिवेल्युएशन हो गया तो वो गारंटी वापस लेनी पड़ी। जिम्बाब्वे नाम का एक देश है, आज से 20-25 साल पहले उनके यहाँ भी होता था कि 100 रुपए का उनका अपना करेंसी का नोट है तो उसमें गारंटी होती थी। आज जिम्बाब्वे की 1 लाख करेंसी $1 के बराबर हो गई। 1 लाख करेंसी $1 के बराबर है जिम्बाब्वे। तो उन्होंने सब गारंटी वापस ले लिया। हिंदुस्तान में कल ये नहीं हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये यहाँ भी हो गया तो रिजर्व बैंक अपनी गारंटी वापस ले लेना, तब आप सब परेशान हो जाएंगे। आप करेंगे क्या? किसान तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है वो एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी जिंदगी चला लेंगे। आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करना चाहते हैं जहां यूरोप और अमेरिका मजबूरी में खड़े हैं। उनकी मजबूरी को हमारी सरकार स्टेटस सिंबल मान रही है। हमारी सरकार मानती है कि वहां के शॉपिंग मॉल्स हैं वो हमारे लिए आइडियल है। तो इस देश की सरकार अब शॉपिंग मॉल्स खोलने में लगी हुई है। उन शॉपिंग मॉल्स के लिए कंपनियों को बुला रही है, वो कंपनियां यहाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी दुकानें वो खोलते चले जा रहे हैं। परिणाम क्या निकलेंगे इसके एक ही परिणाम निकलने वाले हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी और गरीबी अभी भी पिछले 60 साल में गंभीरतम समस्याओं में है, माने जो हल नहीं हो पाई है 60 साल में, वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। यही होने वाला है। आप बोलेंगे जी नए शॉपिंग मॉल्स तो रोजगार खड़े करेंगे, वो जितने रोजगार खड़े करेंगे उससे ज्यादा वो बेरोजगार कर देंगे। वो कैसे होने वाला है? कल्पना करिए कि इस नागपुर शहर में 10-12 बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए, वॉलमार्ट के या केयरफोर के, तो नागपुर शहर के जो छोटे छोटे किराना व्यापारी हैं ये सब अपनी दुकान बंद करके सड़क पे खड़े होंगे।
क्यों? क्योंकि ये शॉपिंग मॉल्स जो बड़े आएंगे इनको कंपटीशन है छोटे दुकानदारों से, उनके आपस में कंपटीशन कभी भी नहीं होते, ये आप ध्यान रखिए। कभी भी दो बड़े कंपनी आपस में कंपटीशन नहीं करते, वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कंपटीशन भारत में नींबू के पानी के साथ है, उनका कंपटीशन भारत में ऊस के रस के साथ है, उनका कंपटीशन भारत में संतरे के रस के साथ है, उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अंदर खाने दोनों एक ही हैं। बड़े कंपनीज आपस में मिलजुल कर ही चलते हैं और प्राइस फिक्स होता है ना पेप्सी और कोक का, तो दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई हमारी बोतल इतने की तो तुम्हारी भी इतने की, और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं बचाऊंगा, मेरे ऊपर अटैक हो तो तुम बचाना मुझे। तो सारी बड़ी कंपनियां जो है ना कार्टेल्स बना के काम करती है, वो 2 हो या 5 हो या 10 हो, उनमें इंटरनल कंपटीशन कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ी हम गलतफहमी के शिकार हैं कि बड़ी कंपनियां आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, बड़ी कंपनियों के आने से मोनोपोली बढ़ती है, कंपटीशन नहीं बढ़ता है। ये पेप्सी कोक ही सबसे बड़ा उदाहरण है। पेप्सी कोक जब आया तो भारत में 12 छोटे बड़े ब्रांड थे, एक थम्स अप ब्रांड था, एक लिम्का ब्रांड था, एक डबल 7 ब्रांड था, एक गोल्ड स्पॉट ब्रांड था, एक ये ब्रांड था, एक वो ब्रांड था। लेकिन 2 बड़े जाइंट आ गए तो सब छोटे ब्रांड खत्म हो गए, या तो वो पेप्सी में मर्ज हो गए या कोका कोला। रमेश चौहान यही महाराष्ट्र के हैं, उनके मुंह से उनकी कहानी सुन लीजिए। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं अपना पूरा एम्पायर ना बेचूं तो 2 दिन बाद में भूखे मरने की हालत में आ जाऊंगा, इसलिए मैंने बेच दिया सब। तो कंपटीशन उनका जो होता है ना वो लोकल लोगों के साथ होता है, लोकल छोटे छोटे ब्रांड्स। तो ये बड़े शॉपिंग मॉल्स आएंगे, इनका कंपटीशन भी भारत की छोटी छोटी दुकानों से होने वाला है। और भारत सरकार के जानकारी के अनुसार, मेरी जानकारी नहीं है, ये सरकार की, हालांकि मैं मानता हूं इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। सरकार बोलती है कि भारत में छोटे दुकानदार 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदार। इसका मतलब 2 करोड़ छोटी छोटी दुकानें इस देश में चल रही हैं। तो ये 2 करोड़ जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ये कॉम्पिटिटर है वॉलमार्ट और केयरफोर। अब वॉलमार्ट और केयरफोर क्या करेगा इनके कंपटीशन के लिए? वो कहेगा चलो ठीक है, 1 साल हम घाटा उठाएंगे, छोटी दुकान में जो माल 10 रुपए का बिक रहा है वॉलमार्ट उसे 8 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में जो माल 5 रुपए का बिक रहा है वो 3 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में कुछ बिक रहा है तो वॉलमार्ट में वो कहेंगे 1 पर 1 फ्री है, ले जाओ। जितनी बड़ी दुकानें हैं सब जगह स्कीम है, 1 पर 1 फ्री, 1 शर्ट चाहिए 1 फ्री ले लो। आप उसको कहो भैया मुझे 1 ही दे दो। एक आजकल बड़ा ब्रांड नेम आया है कुटोन्स। मैं एक दिन दिल्ली में इनके शोरूम में चला गया, कहने लगे जी 1100 रुपए की शर्ट है और 1 पर 1 फ्री है। तो मैंने कहा 550 रुपए दे रहा हूँ, 1 दे दो। 1100 रुपए में आप 2 शर्ट दे रहे हो, 1 पर 1 फ्री है, मैं 550 दे रहा हूँ, 1 दे दो मुझे। कहने लगे जी ये नहीं हो सकता, 2 खरीदोगे तो 1100 में ही लेना पड़ेगा, हम 550 में 1 नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी पॉलिसी है, ये पॉलिसी के चलते हिंदुस्तान के 2 करोड़ दुकानदार कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते 1 पर 1 फ्री। उनके पास स्पेस नहीं है, उनकी सीमा नहीं है, उनकी लिमिटेशन उनको परमिट नहीं करती कि वो कुछ ऑफर कर सके। तो होने वाला ये है कि जैसे बड़े शहर नागपुर में उनके 10-12 खुल गए बड़े शॉपिंग मॉल्स, तो छोटे छोटे दुकानदार नागपुर में खत्म। अब ये जो छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, सरकार के पास इनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। सरकार के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। और ये पूरे देश के बारे में जरा कल्पना करिए कि 2 करोड़ दुकानदार अगर इस देश में खत्म होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, क्योंकि एक दुकानदार के पीछे 5 आदमी का जिंदगी है इस देश में एवरेज। तो 10 करोड़ लोगों की जीवन आप खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी कोई इकोनॉमी में चेंज आए तो वो देश के हित में होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास चॉइस बहुत होगी, ठीक है, चॉइस बहुत होगी। मान लीजिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले गए तो आपको जो चीज खरीदनी है उसके हो सकता है 100 ब्रांड हो। आपको साबुन खरीदना है तो साबुन के 100 ब्रांड हो सकते हैं, 150 ब्रांड हो सकते हैं, 300 ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन होगा तो साबुन ही ना। दूध तो नहीं मिलेगा साबुन की जगह।
तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। हम ये सोचते हैं हमें चॉइस बहुत है, 150 ब्रांड में से एक हम खरीद के लाएंगे, साबुन ही होने वाला है, साबुन से आगे तो कुछ नहीं मिलेगा उस सेक्टर में। वॉशिंग पाउडर खरीदेंगे, हो सकता है 150 ब्रांड नेम हो, लेकिन वॉशिंग पाउडर ही होगा ना, अमृत तो नहीं होगा, गंगाजल तो नहीं होगा। अगर आपको कोई क्रीम खरीदनी है तो हो सकता है 1000 ब्रांड नेम हो उनके पास, तो क्रीम ही होगी ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो हम बार बार करते हैं कि हमारे पास चॉइस होगी, हम चॉइस से ये खरीद सकेंगे, थोड़े दिन मान लो आपकी ये चॉइस आपने पूर्ति कर ली, फिर क्या होगा आगे जरा सोचें। होने वाला ये है कि जब आपकी इकोनॉमी में 2 करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए लगे हुए हैं छोटी छोटी दुकानों के हिसाब से, ये अगर बेरोजगार होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की तो परचेसिंग कैपेसिटी ही खत्म, क्योंकि उनके पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं है। अगर उनकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो मार्केट में डिमांड कम, और मार्केट में डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, और मार्केट में डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही कम तो इकोनॉमी कोलैप्स, और इकोनॉमी कोलैप्स तो आप सबको डूब मरने के लिए कोई रास्ता नहीं। सोचिए जरा इसको इस तरह से। हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक फेज शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन 1991 से मनमोहन सिंह ने शुरू किया। तो इस इकोनॉमी को उन्होंने कहा कि बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमी हो जाएगी और दुनिया में सभी देशों के मुकाबले आ जाएगी। पिछले 15-16 साल से हम देख रहे हैं कि ये लगातार चल रहा है। इसका अंतिम दुष्परिणाम तो यही निकल रहा है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। जो आपके देश का सबसे बड़ा वर्ग है, जिस पर आप जिंदा हैं, उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। और किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि पिछले 15 सालों में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सरकार ने किसानों को काम आने वाली हर चीज को महंगा कर दिया। क्योंकि पिछले 15 साल में आपकी सरकार ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगातार बढ़ा दिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम गरीब आदमी पे ही पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स तो कट किए हैं सरकार ने पिछले 15 साल में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। हम जिंदगी में जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे उन चीजों पे भी टैक्स आ गया। मैंने इस हिंदुस्तान में कभी कल्पना नहीं की थी कि नमक पर भी टैक्स आएगा, लेकिन नमक पर टैक्स आ गया। और नमक पर टैक्स उस व्यक्ति ने लाया है जो हर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि की परिक्रमा करता है। इस देश का हर प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि की परिक्रमा करता है, पूरे देश टेलीविजन पर देखता है। महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स के खिलाफ ही सत्याग्रह किया था, और उस महात्मा गांधी का नाम लेने वाले प्रधानमंत्रियों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। अब वो 15 पैसे किलो का नमक हमें 7 रुपए किलो मिल रहा है, कोई शहरों में 15 रुपए किलो मिल रहा है। तो जो गरीब आदमी के काम आने वाला नमक था वो भी अब इतना महंगा हो गया, तो बाकी चीजों की तो आप क्या बात करेंगे। यूरिया 1991 में मिलता था एक पैकेट 50 रुपए का, अब हो गया 270 रुपए का। डीएपी 1991 में मिलता था 1 किलो 3 रुपए का, अब डीएपी है 22 रुपए का 1 किलो। 1991 में किसानों को काम आने वाला डीजल मिलता था 7 रुपए लीटर, अब डीजल हो गया है 36 रुपए लीटर। 1991 में किसान अगर ये ट्रैक्टर खरीदे तो 1.5 लाख रुपए में मिल जाता था 10 हॉर्स पावर का, अब हो गया है 5.5 लाख का। किसान जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, जो 250-300 रुपए लीटर मिलते थे, अब वो 3000 रुपए लीटर हो गए। जो बीज किसानों को 200-250 रुपए किलो मिलता था, वो बीज अब 70-80 हजार रुपए किलो हो चुका है। कोई बीज तो इस देश में 7 लाख रुपए किलो मिल रहा है। सोने के बराबर का भाव है, 7,000 रुपए का 10 ग्राम सोना है, 7 लाख रुपए किलो, और 7 लाख रुपए किलो बीज भी है। तो सोने के भाव में बीज मिल रहा है। तो किसानों के काम आने वाली हर चीज हमने महंगी किया ग्लोबलाइजेशन में। अब किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया हमने, लेकिन वो जो कुछ पैदा करके बाजार में बेच रहे हैं उसको हमने बढ़ने नहीं दिया भाव, उसको हमने और गिरा दिया। बाहर से गेहूं मंगाना शुरू कर दिया, बाहर से चावल मंगाना शुरू कर दिया, कपास मंगाना शुरू कर दिया, फ्री इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट को लगातार हम लिबरलाइज करते गए तो बाहर से चीजें आने लगी, तो देश में डिमांड कम है, अब सप्लाई ज्यादा हो गई, तो हर चीज सस्ती हो गई। तो किसान बेच रहा है बेचारा सस्ता और खरीद रहा है महंगा। ये है ग्लोबलाइजेशन।
अब इसमें अंतिम दुष्परिणाम यह है कि वो सस्ता बेचे और महंगा खरीदे तो घाटा उठाए, उस घाटे को पूर्ति करने के लिए कर्ज ले, कर्ज का ब्याज भरने के लिए कर्ज ले, कर्ज का फिर ब्याज भरने के लिए और कर्ज ले, एक दिन कर्ज चुकाने की स्थिति में ना हो तो आत्महत्या करे। और ये बड़ा विचित्र देश है कि किसानों का कुछ कर्ज है जो मुख्यमंत्री माफ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री भी माफ नहीं कर सकते। टाटा बिरला डालमिया का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अभी 1,80,000 करोड़ का हो गया है, कोई प्रधानमंत्री को इस पर तकलीफ नहीं। वित्त मंत्री कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में बात मत करो मुझसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसानों का 20,000 करोड़ का कर्ज माफ करने की सरकार की ताकत नहीं है। 1,80,000 करोड़ रुपए बड़े उद्योगों ने दबाकर बिठा रखा है सरकार का, वो वापस नहीं दे रहे हैं। बैंकों से कर्जा ले रहे हैं और अपने को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। कंपनियां पैसा लूट कर ले जा रही हैं, उसमें पैसे डूब रहे हैं, उनकी कोई पकड़ धकड़ नहीं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस इस देश में इतने बढ़ गए हैं कि आज तक हमें नहीं लगता कि किसी को फांसी की सजा हो गई हो। जो आर्थिक अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं इस देश में। तो हम देखते जा रहे हैं कि आखिरकार ये ग्लोबलाइजेशन हुआ किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन हुआ शेयर मार्केट के लिए, लेकिन शेयर मार्केट पूरी इकोनॉमी का 1% के आसपास भी नहीं। हमारा ग्लोबलाइजेशन किया, उससे शेयर मार्केट में तो उछाल आया है, और वो उछाल आया कि 14,000 पॉइंट पे हम पहुंच गए, लेकिन वो हिंदुस्तान के 110 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर सकता शेयर बाजार। वो हो सकता है 10-20 लाख शेयर ब्रोकर्स की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन 110 करोड़ लोगों के लिए उसके पास कुछ नहीं। फिर थोड़ा बहुत बूम आया है इस देश में तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले के पास मैं जाता हूँ, इन्फोसिस के, एक बार मैंने उनको पूछा था, नारायण मूर्ति को, कि जी आप बोलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं आप, क्या बनाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास है? तो धीमे से कहा कि हम बॉडी शॉपिंग करते हैं। बॉडी शॉपिंग को वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कहते हैं। अंग्रेज जैसे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के गुलाम बना के ले जाते थे ना, इंडेंचर्ड लेबर की तरह से, वो भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जैसा ही था, वो बॉडी शॉपिंग ही थी। गांधी जी ने उसी के खिलाफ बगावत की थी। आज वो नए स्वरूप में हो रही है बॉडी शॉपिंग। यहाँ से लड़के लड़कियों को थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखा के मार पीट के ले जाते हैं, और अमेरिका में खराब से खराब स्थिति में उन्हें रहना पड़ता है। अगर आप देख लेंगे तो आप रो देंगे। मैंने देखा है हिंदुस्तान से गए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितनी बुरी पैथेटिक कंडीशन में अमेरिका में रहते हैं। इतनी खराब स्थिति में अमेरिका के मजदूर भी नहीं रहते जो यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। उनको एकदम ऐसे रहना पड़ता है जैसे कैदी रहते हैं। आपने रेल का 3 टायर का डिब्बा देखा है ना, ऐसी जिंदगी है उनकी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूसरे के ऊपर सो रहा है, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, चौथा पांचवें के ऊपर। हॉरिजॉन्टल स्पेस भी नहीं है अपना ब्रीफकेस रखने के लिए। जैसे मजदूरों को रखा जाता है, जैसे कैदियों को रखा जाता है। 91 में उसने कुछ हिस्से हमारे देश के ऐसे कर दिए जो हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि हम उन हिस्सों के नजदीक रहते हैं। हमको शेयर मार्केट दिखाई देता है, हमको सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, हमको आईटी पार्क दिखाई देते हैं, लेकिन हमें वो गरीब किसान नहीं दिखाई देते जिनकी आमदनी पिछले 15 सालों में 100 गुने से भी कम हो गई है। सरकार बोलती है कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग हैं जो एक दिन में 12 रुपए खर्च करने की हैसियत नहीं रखते। इस लेवल पे जीते हैं 40 करोड़ लोग। तो इन 40 करोड़ लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन के पास कोई उत्तर नहीं। हमारे हिंदुस्तान में 21 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से मात्र 14 करोड़ परिवार ऐसे हैं, मात्र 7 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके अपने घर में। हमारे इसी हिंदुस्तान में पीने के पानी की समस्या आप हल कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से? कहते हैं जी कोई उत्तर नहीं। ग्लोबलाइजेशन के पास पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं, खाने की रोटी का समाधान नहीं, हिंदुस्तान की माताओं बहनों के लिए टॉयलेट्स दे सके उसका कोई समाधान नहीं। हमारे देश के 14 करोड़ लोगों के पास ठीक से घर भी नहीं है, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उसका कोई समाधान नहीं। किसी अमेरिकन कंपनी के पास इसका समाधान नहीं। तो आखिर हम ये कर किसके लिए रहे हैं ग्लोबलाइजेशन? हमने इकोनॉमी का फेस चेंज किया 1991 में। किसानों को तो लाभ हुआ नहीं, मजदूरों को उसमें कोई लाभ हुआ नहीं। मजदूरों की संख्या लगातार कम हो रही है, पहले से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर ये है कि हायर एंड फायर की पॉलिसी और ले आओ इस देश में, तो कोई सिक्योरिटी ही ना रहे उनके सामने।
और सरकार क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अपने हाथ खींचते जा रही है। पिछले 15 साल का बजट अगर आप ध्यान से देखें सरकार का, तो हर साल सरकार ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम से कम करना शुरू किया, और इस साल तो 91 की तुलना में उनका इन्वेस्टमेंट अब 0 हो गया एग्रीकल्चरल सेक्टर में। 91 में अगर सरकार 100 रुपए लगा रही थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो इस साल उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लगाया। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए पैसा नहीं उनके पास। एजुकेशन में सरकार ने बोल दिया है कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स चलाओ, कॉलेजेस चलाओ, सरकार की तरफ से कोई फंड्स नहीं आएंगे। आपको मालूम है महाराष्ट्र में 1 लाख स्कूलों को पैसा मिलना बंद हो गया है। उन स्कूलों को कहा गया या तो आप बंद कर दो इन स्कूलों को, नहीं तो आप खुद चलाओ अपनी ताकत से। तो स्कूल वालों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो फीस महंगी करें, फीस बढ़ाएं, और फीस बढ़ाते हैं तो करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता की ताकत नहीं है उतनी फीस ले सके। एक तरफ सरकार कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, दूसरी तरफ एजुकेशन फॉर उन्हीं के लिए जो पैसे दे सके। हमने इस ग्लोबलाइजेशन में क्या किया है, ऐसे कई बड़े स्कूल आ गए हैं इस देश में जो 1 लाख रुपए साल की फीस लेते हैं कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए, और इसी देश में 12 करोड़ विद्यार्थी कक्षा 1 में जा नहीं सकते क्योंकि उनके पिताजी के पास 30 रुपए भी नहीं है।